Can you tell me some of the predictions for 2026? कोई politician will be murdered, probably through by being shot. Randomly बैठे बैठे बस चीज़ें फील होती हैं और मैं लिखती हूँ और फिर वो 3 महीने 4 महीने कभी कभी अगले दिन ही हो रही होती हैं. But what's the crazy case, जिसने आपका भी दिमाग घुमा दिया? मैंने लिखा था कि the year will start with a lot of fire. And I think तीसरे ही दिन पे बहुत आग लगी थी, I think टर्की में. वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? मुझे पता ही नहीं कौन खेल रहा है. क्या मेरी वाली अलग है? ये नॉर्मल आवाम के सवाल. क्या आपकी वाली आपके लिए अलग है? So, what do you think? What is law of attraction? Again, एक तो आप you're carrying a certain positive energy जो कि obviously which you're sending out to the universe. And at the same time बात वही आ जाती है कि आप खुदा से अच्छा गुमान रख रहे हैं. क्या मेजॉरिटी केस क्या आता है आपके पास? Majority comes with marital issues. Extramarital affairs, शादियाँ अच्छी नहीं चल रही हैं, not sure whether they want to stick around or no. एक तो ये भी इंसिडेंट हुआ था कि मैंने लिखा है कि I can hear an earthquake coming and within an hour earthquake आ गया था इस्लामाबाद तो में. 2026 में दुनिया खत्म नहीं हो रही. No, definitely not. सही है. मैं रीडिंग्स करती हूँ फ्रॉम पीपल्स पास्ट. इन द फ्यूचर पे ज़्यादा हम ओपनली नहीं डिस्कशन करते, फिर आपको पता है वो इस्लामिक रिपब्लिक वाले सारे आ जाते हैं. सो दैट उसके अलावा आई डू प्रेडिक्शंस. आई एम अ ग्लोबल एंड अ यूनिवर्सल सीयर. Okay. सो अभी तक आई हैव डन ऑलमोस्ट आई थिंक 290 to 300 predictions, all of which came true. मेरी हार्डली कभी कोई प्रेडिक्शन गलत नहीं हुई है. Out of 300 out of? Out of 300. Okay, so सारी predictions जो आप करती हैं वो Yeah. I think सिर्फ 2 या 3 predictions हैं जो हुई नहीं है अभी तक. गलत कुछ भी नहीं निकला. Okay, interesting. So I'm a seer and उसके अलावा I do astral projection. So basically I sort of use astral projection होता है out of body movement जो होती है. I use it for helping people out in order to find their lost items. किसी कोई चीज़ खो गई है, so they come to me to ask where it could be. So in a lot of cases वो चीज़ मिल जाती है. I can guide them कि वो चीज़ कहाँ पे नज़र आ रही है. And in a lot of cases नहीं भी मिलती. It's just not meant to be with people then anymore. Is it making sense? Yes, it does make sense. But I want to know that how does it all work? Define me the perfect case or a perfect client with the type of problems वो आपको पास लेके आते हैं. Yeah. And how do you help them? What kind of sessions do you conduct with them? Okay. आपका user experience about your client and of course your side also. Yeah. आपका process क्या होता है normally? I want to understand how this whole thing works. Basically पूरा आप ये कह लें this is energy exchange work. ठीक है. So everything is based on what I pick up about their energy. So कुछ लोगों की energy जैसे बहुत receptive होती है. People are open to getting themselves read. So I'm reading them, right? So जो common बहुत मसले आते हैं career को लेके, relationships को लेके, mainly health concerns होते हैं लोगों के, property के बहुत matters होते हैं, financial matters बहुत होते हैं. So main जो है वो ये होते हैं. And then there are of course other nitty-gritties जो होती हैं life की, relationships और family dynamics आ गए, कोई certain situation आ गई, वो वाली चीज़ है. सही. What's the define one case? You don't have to name it, Yeah. Of course, because confidentiality है. But what's the crazy case? कभी आपके पास कोई आया हो and जिसने आपका भी दिमाग घुमा दिया हो? काफ़ी सारे crazy. Like when do you remember? उस तरीके से. आपका चाय by the way ready है so. या मैं उसी को देख रही हाँ, थी. चाय पी सकती हैं आप. I think यार बहुत अजीब केसेस आते हैं to be honest. I don't think I can quote one, but जो चीज़ I think मुझे बॉदर कर रही होती है ना वो ये है कि how aloof people are about life. I mean वो situations
ऐसी होती हैं कि आप अगर 2 मिनट बैठ के सोचें और अगर कहते हैं ना कि आप थोड़ा सा सेल्फ कॉन्टम्पलेशन में जाएं कि यार ये चीज़ हमारे साथ क्यों हो रही है, क्या है। आई मीन लोगों को पता है कि अगर वो लाइफ में कुछ गलत कर रहे हैं तो वो क्या गलत है, अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो क्या अच्छा है, रिगार्डलेस ऑफ दैट, नोइंग दैट उस गलत से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, दे आर स्टिल डूइंग इट, राइट। सो जस्ट दैट कि वो एक अलूफ होना कि पता होते हुए भी कुछ नहीं पता। आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो मैंने बहुत कॉमनली देखी है लोगों में रिपीटेडली। बट जहाँ तक स्टोरीज़ हैं वो तो बहुत अजीब अजीब आती हैं लोगों की। आई डोंट थिंक आई कैन कुछ ऐसी स्टोरी बता दें जो कि आप शेयर कर सकें, यू नो, नॉट वेरी हार्श, कैन बी फनी आल्सो। आई थिंक लिटरली इतने ज़्यादा होते हैं क्लाइंट्स हर तरह के। देयर आर लॉट ऑफ, आई डोंट नो इफ दिस शुड बी रिकॉर्डेड, बट so somebody had an extramarital affair. Okay. And उनका बहुत उन्होंने रिकरिंग सेशंस लिए और उनको जानना ये था कि इज़ इट ऑल राइट टू कंटिन्यू टू डू सो, हैव दिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। Okay, so the person जो कर रहा था वो आपके पास, या दिस या कर रही पर्सन कर रहा या था। कर रही यू नो बाद में मुझे डांटे हाँ, क्या कर रहा, he or she. या ही और शी। सो उनको आई थिंक उनका जो मेन इशू था वो यही था कि हर बार यही होता था कि इज़ इट ऑल राइट इफ़ आई कंटिन्यू टू हैव दिस अफेयर, एंड इज़ इट ऑल राइट कि अगर मैं अपनी बीवी या अपने हस्बैंड को अगर मैं बताऊं या ना बताऊं, वो एक लंबे अरसे तक एक ये मसला है, एक बहुत गमगीन के बताया जाए या नहीं। सो आई थिंक इस तरह की बड़ी अजीब अजीब वो आती हैं क्वेरीज, एंड देन आप यू नो एज समबडी हु हैज़ टू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नो जजमेंट, आप क्या ही कह सकते हैं किसी को। But then don't you think some things are very unethical जहाँ पे जजमेंट होना ज़रूरी भी है? So, you know, this is where you have to draw that fine line. Me as somebody who's seeing things through different realms. And then there's also a side of me as a human being जिसका अपना एक moral compass है. अगर मैं उस मॉरल कंपस को आगे रखते हुए लोगों से बात करती हूँ तो देन आई हैव टू ऑल्सो बी वेरी ट्रांसपेरेंट इन अ सेंस कि मुझे बताना पड़ता है कि मैं आपकी जगह मैं होती तो मैं ये कभी ना करती, True. आपकी जगह मैं होती तो मैं ये करती। बट एंड देन आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू देम कि मैं क्योंकि 2-3 रेल्म्स से 2-3 डायमेंशन से उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख रही हूँ तो मैं आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता देती हूँ। बताना मेरा फ़र्ज़ है। आई कैन इन नो वे इन्फ्लुएंस समबडीज़ डिसीजन, यू नो, बिकॉज लोग मेरे पास इसलिए नहीं आ रहे कि मैं उनको किसी तरह से इन्फ्लुएंस करूं। दे आर कमिंग टू मी बिकॉज आई फील पीपल, अगर हम ओवरऑल देखें ना, पीपल वांट टू बी सीन, दे वांट टू बी हर्ड, दे वांट टू बी अंडरस्टूड, एंड दे डोंट वांट टू बी जज्ड। हमारे यहाँ सबसे पहली चीज़ यही होती है कि हमें एक एंटाइटलमेंट है ना बहुत ज़्यादा सबके अंदर कि हम कहते हैं हम जज करें, सबको दबा के जज करें, अंडरस्टैंड भी नहीं करना किसी को। So I think सबसे ज़्यादा चीज़ वो होती है, and which is why I have to be very understanding towards other people's emotions कि अगर कोई इंसान एक certain चीज़ कर रहा है in terms of their actions, तो क्योंकि वो मुझे नज़र आ रही है कि हिस्ट्री क्या रही है, किस वजह से वो आज इंसान ऐसा है, किस वजह से वो इंसान एक certain manner में react कर रहा है, या उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस शायद नहीं सोच रहा जो कि मैं देख रही हूँ बट अभी उसको नज़र नहीं आ रहे। सो अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू एक्सप्लेनिंग इट एंड देन सेइंग कि ठीक है ये मॉरल कंपस मेरा ये कहता है, आपका आई डोंट नो क्या कहता है, बट ओवरऑल इंसानियत के ज़ुमरे में रहते हुए ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, आगे आपकी मर्ज़ी। That's good actually, but don't you think ये काम तो थेरेपिस्ट का भी है? थेरेपिस्ट, मैं हमेशा कहती हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडीज़ वर्क, आई फील दैट थेरेपिस्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम दे गो बाय द बुक्स दैट देव रेड। हमने कोई किताबें नहीं पढ़ी हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक ये वाली बात होती है ना
थेरेपिस्ट आप अगर नोटिस करें, आई माई सेल्फ पर्सनली चेंज्ड about 5 to 6 therapists because I did not feel the kind of comfort that I wanted to feel with a certain person that I'm seeking professional help from. वो चीज़ अगर आपको नहीं मिल रही है एक थेरेपिस्ट से, आप कहते हो चलो दूसरे के पास. आई थिंक विद मी, बिकॉज हम जैसे लोग या फिर हम क्योंकि बहुत सारी वो चीज़ें भी पिक कर लेते हैं लोगों की जो एक थेरेपिस्ट नहीं पिक कर सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके शायद आप जब 4 साल के होंगे, आपका कोई ट्रॉमा मैं पिक करके आपको बता सकती हूँ कि गो बैक टू दैट टाइम, उस टाइम में आपके साथ ये एक इंसिडेंट हुआ, इस वजह से आपका आज ये ट्रिगर है. अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आर अनएबल टू आइडेंटिफाई देयर ट्रिगर्स ऑल्सो. थेरेपी में भी बहुत बार ट्रिगर्स नहीं थेरेपिस्ट पकड़ पाते हैं. दैट्स बिकॉज एक तो थेरेपी इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, हमारा बहुत स्लो प्रोसेस नहीं होता. ऑल्सो बिकॉज हमारा थोड़ा सा आई थिंक एनर्जी का काम आ जाता है बीच में. इट्स डिफरेंट दैन थेरेपी. सो इट्स एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. सो बाय द टाइम पीपल आर डन विद देयर सेशंस, they are going to feel a lot more lighter in terms of their emotions or in terms of whatever heaviness they were feeling in that moment. वो चीज़ आपको थेरेपी में नहीं मिलती है. मुझे भी याद है मैं 1-2 बार थेरेपी के लिए गई थी. I ended up coming back with a lot of mood swings. But why? What happened? I mean, normally? because वो आपके wounds, they open up, right? That's fine, thank you. They open up your wounds in that moment. And then एक तरीका ये होना चाहिए ना that you're supposed to then wrap up those wounds at least temporarily, ताकि इंसान जब उन wounds को खोलने के बाद घर वापस जाए तो वो अपनी जो present moment है उसमें रह सके. Because once you start talking about your traumas or your depression or anxiety, so आप कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी कैरी करते हो साथ. सो इन आवर केस वी डोंट डू दैट. पहली बात तो ये कि हम सारे ट्रिगर्स या वोन्स खोलते ही नहीं हैं इंसान के. वी जस्ट फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट जो कि उस वक्त ज़रूरी लग रहा होता है क्लाइंट को. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंसान आ रहा है सेशन लेने कि यार मेरी शादी मुझे करनी है एंड मेरी फैमिली नहीं मान रही है, आई एम जस्ट गोना फोकस ऑन दैट. आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन कि अच्छा ओवरऑल आपकी क्या स्टेट ऑफ माइंड चल रहा है, ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है. आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स जस्ट अबाउट गाइडिंग पीपल टूवर्ड्स अ सर्टन सिचुएशन. इट्स नॉट ऑलवेज थेरेपी, राइट? बिकॉज अगेन जो चीज़ें कुछ हमें पता चल जाती हैं कुदरती तौर पे, थेरेपिस्ट डोंट गेट टू नो दैट. सो आई थिंक दैट्स वेयर द डिफरेंस कम्स. But how did it happen regularly? How it started कि जहाँ पे you accepted it also कि हाँ okay this is something I can do, and when was the time you decided कि I want to help people with this thing? अच्छा, in all honesty मैंने काम बहुत अरसा नहीं हुआ शुरू किया. I came out to the world in September 2024. And it was an overnight decision. Friends ने कहा तुम शुरू करो, I think it's high time. उससे पहले I think I would say this was 2020-21 कोविड के राउंड का टाइम था. I myself was going through depression. मुझे एक फेज़ आया था, मुझे डिप्रेशन हुआ था and I wanted to seek therapy. और जो मैंने भी मेंशन किया कि मैंने थेरेपिस्ट चेंज किए हैं, सो उसकी वजह यही थी कि मैं जब थेरेपिस्ट्स के पास जाती थी तो वो बीच में कहते थे लेट्स हैव अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, एंड द मिनट दे वुड गो साइलेंट आई वुड स्टार्ट पिकिंग अप ऑन देयर इश्यूज़. और वो मेरे लिए इतना प्रॉब्लमेटिक होता था बिकॉज मैं अपने इश्यूज़ के लिए गई हूँ और फिर वो आगे से उनके मुझे मैं पिक कर रही हूँ, एंड व्हेन आई वुड टेल देम कि यू नो आई कांट डू दिस बिकॉज मैं तो आपके प्रॉब्लम्स पिक कर रही हूँ. सो वो इतना इंट्रीग्ड हो जाते थे मेरे से कि वो रिवर्स हो गया. दैट्स ट्रू, वो रिवर्स सेशन हो जाता था. और वो ना लिटरली वो अपना डिस्कस करना शुरू कर देते थे कि अच्छा सो हाउ डू यू नो दिस, अच्छा सो मेरे अब्बा भी मारते थे मुझे. यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे. एंड दे वुड इंस्टेड आस्क क्वेश्चंस, और फिर आई थिंक बाद में वो रियलाइज़ करते थे कि वो शायद अपने प्रोफेशनल उससे दे वेंट अ लिटिल ओवरबोर्ड. एंड वो फिर बाद में मुझे कहते थे कि वो यू नो हमें तो इजाज़त ही नहीं होती है कि हम इस तरह करें, बट वी जस्ट गॉट सो एक्साइटेड और व्हाटएवर कि वो आपका सेशन भी ख़राब हो गया.
विच इज़ वाई मैंने बार बार फिर बदले एंड आई रियलाइज कि अच्छा थेरेपी मेरे लिए नहीं काम करेगी. सो वहाँ से शायद मुझे एक वो एक्सेप्टेंस आ गई कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ इंक्रीजिंग विद टाइम. तब इतनी इन्हांस नहीं हुई थी मेरी एबिलिटीज़. ये मुझे आइडिया हो गया था कि आई वुड लुक एट, आई एम ऑल्सो फेस रीडर राइट. सो मैं लोगों के बस शक्ल देखती थी तो मुझे चीज़ें फील होना शुरू हो जाती थी अबाउट देयर लाइफ. It was more after I started working in September 2024. मैंने स्टार्ट किया रीडिंग्स करने से और फिर मैं एक दिन रैंडमली बैठी हुई फ़ोन अपना लेके और मैंने आई डोंट नो फॉर सम रीज़न कुछ चीज़ें बड़ी बेसाख्ता होती हैं हमारे काम में. तो मैंने बस ऐसे ही स्टोरीज़ का वो खोल के और मैंने लिखना शुरू किया प्रेडिक्शंस फॉर द नेक्स्ट 3 months. एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग ऑल्सो टू माई सेल्फ कि यार ये मैं क्या लिख रही हूँ और मैं क्यों लिख रही हूँ एंड वेयर इज़ दिस कमिंग फ्राम. एंड वो मैंने बस लिखना शुरू किया है. आई रिमेंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन 3 महीनों का. दिस वॉज द एंड ऑफ सितंबर आई थिंक या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर था. और मैंने कोई 10 या 12 प्रेडिक्शंस लिखी हर महीने के हिसाब से. एंड लिटरली अ वीक लेटर ऑनवर्ड लोगों के इनबॉक्स आने शुरू हो गए कि लीज़े ये भी हो गया, ये भी हो गया, दिस इज़ डन, दिस इज़ डन, दिस इज़ डन. And by the end of that year, 2024, all 14 predictions were done. What were those predictions? उसमें आई थिंक एक मैंने बताया था कि the last day of 2024 is going to end with a plane crash. That happened. उससे पहले मैंने कुछ कहा था कि skies will turn पिंक या कुछ मैंने इस तरह मैंने इतनी की है मुझे ऑनेस्टली याद भी नहीं रहता. बट समथिंग लाइक दैट एंड विद इन दैट वीक समवेयर इन द वर्ल्ड द स्काई इज टर्न्ड लिटरली पिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन दी थी उसी तरह. देन आई हैड ऑल्सो मैंशनड अबाउट आई डोंट नो सम सेलिब्रिटी डेथ और समथिंग दैट ऑल्सो हैपेंड. सो बहुत स्पेसिफिक उस तरह की चीज़ें हुई. जब वो हुई तो फिर मुझे लोगों के मैसेजेस आना शुरू हुए फॉलोअर्स के वी वांट यू टू डू मोर प्रेडिक्शंस. सो मैंने लास्ट वीक ऑफ 2024 का जो था उसमें मैंने फर्दर और प्रेडिक्शंस देनी शुरू की फॉर द होल ईयर. एंड वो जब मैंने दी तो इंटरेस्टिंगली जो मैं लिखती जाती थी वो विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ होता चला जाता था. सो दैट वाज ऑफ कोर्स वेरी नोटिसेबल. लाइक मैंने लिखा था कि द ईयर विल स्टार्ट विद अ लॉट ऑफ फायर एंड आई थिंक तीसरे ही दिन पे बहुत आग लगी थी आई थिंक टर्की में. सो दैट हैपेंड. फिर वो चलता रहा सिलसिला. मैंने मेंशन किया था कि अभी ये चलेगा इसी तरह आग लगती रहेगी जगहों पे. एंड देन आई मेंशन कि अब आग के बाद वाटर इज़ गोइंग टू शो अ लॉट ऑफ रेज एंड देन ऑल ऑफ अ सडन फ्लड्स बहुत आने शुरू हो गए थे. एंड देन आई मेंशनड कि आई कैन हियर द अर्थ्स क्रस्ट मूविंग विच ऑल्सो मेंट कि अर्थक्वेक्स आएंगे. So within that week, एक तो ये भी इंसिडेंट हुआ था कि मैंने लिखा है कि आई कैन हेयर एन अर्थक्वेक कमिंग एंड विद इन एन आवर अर्थक्वेक आ गया था इस्लामाबाद में. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. बस उसके बाद से फिर मैं प्रेडिक्शंस भी करना शुरू हो गई. एंड फिर मैंने नोटिस किया कि मैं शुरू में जब सेशंस करती थी मैं वीडियो कॉल्स करती थी. एंड देन आई रियलाइज इट वॉज वे टू एग्जॉस्टिंग फॉर मी. मैं शायद ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही थी एनर्जी. सो मैंने फिर लोगों को कहा मैंने कहा नहीं आई डोंट वांट टू डू वीडियो. आई थिंक आई वुड वांट टू जस्ट डू ऑडियो कॉल्स. जब मैंने ऑडियो करना शुरू किया तो लोग मुझे कहते थे कि हम आपको अपना नाम बताएं या अपने पेरेंट्स का नाम बताएं. तो आई वुड से कि एक्चुअली नो आई डोंट थिंक आई नीड दैट. सो देन आई रियलाइज्ड कि जस्ट बेस्ड ऑन पीपल्स वॉइसेस आई कुड टेल एवरीथिंग अबाउट देम. So that is how I just started discovering things about myself as well. फिर वो चीज़ हुई. फिर इवेंचुअली मेरी एक दोस्त का आई थिंक मैंने पहले भी किसी एक पॉडकास्ट में बताया मेरी एक दोस्त की रिंग्स खो गई थी. आई हैड नेवर बिन टू हर हाउस. वी हैड रिकनेक्टेड आफ्टर क्वाइट अ फ्यू ईयर्स. सो उसने मुझे कहा कि लीज़े मेरी रिंग्स खो गई हैं. मैंने कहा अच्छा मुझे तुम 2 मिनट दो मैं बताती हूँ. लेट मी सी इफ़ आई कैन डू एनी थिंग अबाउट इट. एंड आई ट्राइड डूइंग एस्ट्रल. वो भी तुक्के में ही हुआ. एंड I asked her कि तुम्हारा कमरा इस तरह लगता है. Is this the placement of the dressing table? Is this what the cupboards look like? And she said कि हाँ ऐसा ही है मेरा कमरा. और
जो इवन पेटी चीज़ें होती हैं ना, बिल्कुल छोटी छोटी, क्या वाज लाइक तुम्हारे Minute details also. माइन्यूट डिटेल्स, कि मैंने कहा तुम्हारे ड्रेसिंग टेबल पे एक पिंक कलर का छोटा सा एक ज्वेलरी बॉक्स है, Mr. विच India. आई कैन सी. सो आई थिंक उसने कहा हाँ हाँ ये है. तो फिर मैंने उसकी रिंग्स की उसको डिस्क्रिप्शन दी कि अच्छा तुम्हारी रिंग्स इस तरह की लगती हैं, एंड शी सेड हाँ एग्जैक्टली यही डिस्क्रिप्शन है. तो वो मैंने बता तो दिया उसको, मैंने कहा हाँ तुम्हारी ना कल तक मिल जाएगी, तुम यहाँ यहाँ ढूंढो सारी जगह. और वो उसको मिल भी गई. अब जब उसने मुझे कहा मैं खुद भी डर गई. हाँ, आपका कोई सामान खुद तो पर्सनली खोता ही नहीं होगा. नहीं, सच में, एक्चुअली आई कांट यूज दीज एबिलिटीज फॉर माई सेल्फ. नन ऑफ इट फॉर माई सेल्फ. सही है. आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट इट नाउ बिकॉज फायदा क्या? लोगों को फायदा है. But then still, I think we just come, you know, as vessels. हमें बस लोगों के काम आना है. लोगों का सब कुछ सामान मिल गया, खुद की घड़ी खोई हुई है वो नहीं मिल वो रही. हम ढूंढ रहे होते हैं. मेरा तो चश्मा भी खो जाए मैं ढूंढ रही होती हूँ कि यार चश्मा नहीं मिल रहा. So yeah, nothing for myself. So you can't help yourself but others. Yeah. That's a drawback इस चीज़ को लेकर आई थिंक. ड्रॉबैक भी है, बट आई थिंक इन अ वे वही हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. आई फील अच्छा इसलिए कि इतना कुछ आप देख लेते हो अबाउट लाइफ, यू नो, सो मच ट्रूथ अबाउट पीपल, अबाउट लाइफ, कि फिर ना आपका दिल उठने लगता है चीज़ों से. एंड आई डोंट थिंक आई वुड वांट टू नो सो मच अबाउट माई लाइफ, व्हाट्स अबाउट टू हैपन, you know, whose intention is what. I don't want to know all of that. बुरा हाँ कभी कभी होता है कि यू नो अपनी भी हेल्प हो जाए, बट नेवर. What are some things, अलीज़े, जो आपने लोगों में बहुत कॉमनली ऑब्जर्व की हैं? आई नो अलूफ वाली बात तो इट्स समथिंग, बट नॉर्मली आई एम आस्किंग, यू नो, द यंगर जनरेशन नाउ, राइट? We have problems, right? Lots of problems. A lot of them. Yeah. People are insecure. People have a lot of trauma from childhood. And I don't know. पहले वाले generation वाले लोग were more patient. People are now less patient. But also traumatized. Yes. So what are some main things you have, you know, observed about people of this generation? So, Negative and positive both. पॉजिटिव में आई वुड से कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ अवेयरनेस इन टर्म्स ऑफ, मुझे यही लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स वगैरह थे, यू नो, ग्रैंड पेरेंट्स थे, दे वर ऑल वेरी ट्रामेटाइज्ड पीपल. येस, अ लॉट मोर पेशेंट, बट एट द सेम टाइम उनके वो प्रॉपर आउटलेट्स नहीं थे इन टर्म्स ऑफ थेरेपी हो गया, इन टर्म्स ऑफ दैट अवेयरनेस, कि उनको पता हो कि जी इफ़ समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर देम तो उसके बारे में क्या करना है. If there's a situation that they don't want to be dealing with, उसके बारे में क्या करना है. So which is why you're saying patience, right? तो उनकी नज़र में क्या था, सब्र, तहम्मुल, और उसको नाम दे दिया गया फिर फर्दर लिहाज का, कि अगर आप कम बोलने वाले हैं, आप you know, if you're not battling around things, तो आपके अंदर बहुत पेशेंस और सब कुछ है. Now I feel because there's a lot more awareness, people are a lot more aware about कि उनको क्या चीज़ acceptable है, क्या चीज़ acceptable नहीं है, boundaries कहाँ पे set करनी है, कहाँ नहीं set करनी है. Also again in terms of trauma क्या है, therapy लेनी है नहीं लेनी है, therapy कोई taboo नहीं है. So all of these things I feel they're really good, but again थोड़ा सा मुझे ये भी लगता है कि अब की generation एक कहते हैं ना, एक सेल्फ कॉन्टम्पलेशन में जाना, अपने आप को टटोलना, वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि है. एक इट्स अ वेरी ब्ला काइंड ऑफ एन एटीट्यूड. इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, सो व्हाट, आई विल स्टिल डू इट. रिफ्लेक्टिव नहीं है. या इफ देयर इज एनीथिंग जो कि मुझे पता है कि कल्चरल तो आप छोड़ दें एस्पेक्ट, इवन रिलीजियस एस्पेक्ट से भी, अगर हम, चलो मैं ये नहीं कह रही कि बहुत एक रिलीजियस ब्रिगेड हम बन जाएं, बट यू नो जस्ट द बेसिक्स ऑल्सो मुझे लगता है उससे बहुत दूर हैं. आई डोंट नो इफ दिस इज़ ओके टू स्पीक अबाउट दिस हियर, बट आई एम लाइक वेरी मच, यू नो, जब मैं सुनती हूँ द हुकअप कल्चर,
and I'm like, yaar, what's happening? This is just so weird, you know. So again, आपको पता है कि क्या गलत है क्या सही है, but again you're very blah about it. या डू यू थिंक कि हमने फ्रीडम को गलत सेंस में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया? Definitely, yeah. या I think again वही बात आती है ना कि लोग वो जो एक लाइन आपको ड्रॉ करनी होती है ना बिटवीन गुड एंड बैड एंड राइट एंड रॉन्ग, वो सब ने उसकी अपनी एक डेफिनेशन बना ली है. जिसको जो सूट करता है वो सही है, जिसको जो सूट करता है वो गलत है. इट कुड बी कि आपके लिए एक चीज़ ठीक है, वो मेरे लिए ठीक नहीं है. यस, एक आई अंडरस्टैंड कि वो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़रूर होना चाहिए और रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए उसकी, बिकॉज योर नॉर्मल इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी डिफरेंट दैन माई नॉर्मल. बट कुछ तो एक डेफिनेशन होनी चाहिए ना बेसिक वर्ल्डली चीज़ों की, जो कि हम सबके बीच में कॉमन होनी चाहिए. आई फील दैट इज़ नॉट देयर एनी मोर. सब अपने हिसाब से चला रहे हैं चीज़ों को. सो आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम विद दिस जनरेशन. पेशेंस, अगेन पेशेंस को भी हमने बहुत एक्सट्रीम्स पे ले लिया है. पहले ये था कि पेशेंस यूँ है कि बहुत बर्दाश्त करना है, अब ये है कि बर्दाश्त ही नहीं करना है. हाँ. सो देयर इज़ नो बैलेंस. वो जो एक बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए चीज़ों में, मुझे लगता है दैट्स नॉट देयर एनी मोर. और वो अगेन जो नैरेटिव एक बना लिया ना हमने कि क्योंकि हमारे बाप दादा ऐसे थे, क्योंकि हमारी माएँ ऐसी थी कि उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया, हमने नहीं करना. सो उसकी वो एक्सट्रीम्स फिर हम कहते हैं कि यू नो वो हमें फॉलो करनी है कि क्योंकि उन्होंने ऐसे किया तो हमने नहीं करना. नॉट थिंकिंग वाइजली कि देयर शुडंट बी एनी कंपैरिजन. यू आर लिविंग योर लाइफ एज एन इंडिविजुअल, दे लिव्ड देयर्स. उनका दौर और था, आपका दौर और है, एंड थिंग्स शुड जस्ट बी डन अकॉर्डिंग टू यू नो योर गिवन सर्कमस्टांसेस. आई थिंक जहाँ तक मेरी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन है, इतना सोचता नहीं हूँ मैं चीज़ों के बारे में, बट स्टिल पीपल जो है वो आजकल ट्राई करते हैं कि टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एंड दे एंड अप बीइंग वन ऑफ देम. ओके. They want ke, you know, I'm 27 years old. With my friend circle and the people I'm surrounded with, they try to be very different, but they are also a copy of something they've seen on social media or somewhere else. So I think originality is missing very much, which is something I feel. क्योंकि हमारे पास इन्फ्लुएंस होने के बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स आ गए हैं. तो आज हर चीज़ है, इतने सारे मीडियम्स हैं, एंड कोई भी चीज़ कूल लग जाती है, विच इज़ वाई लाइन्स आर वेरी मच ब्लर्ड, विच इज़ डू यू एग्री? सी आई अंडरस्टैंड दैट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया चीज़ों में, मिल गया है, बट अगेन जो एक चीज़ मैं सोचती हूँ कि पेरेंट्स तो कहीं नहीं गए ना किसी के, फैमिली के जो अपने कुछ तौर तरीके हैं वो कहीं नहीं गया. सो डेफिनेटली बेशक एक्सपोजर है, बट व्हाट अबाउट जो घर से कुछ चीज़ें आप लोगों ने शुरू से सीखी हैं, रूट्स, जो आपकी रूट्स हैं, दे आई एम श्योर दे आर वेरी मच स्टिल देयर. बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट जो आप कह रहे हैं कि एक रैट रेस में हम पड़ गए हैं सब, ओरिजिनलिटी रही नहीं है, इसीलिए बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू इम्प्रेस एवरीबडी एल्स. व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि almost everybody has become quite a people pleaser. And हम जिन चीज़ों को अब हमें फोकस करना चाहिए, you know, जैसे मैं कहती हूँ मज़हब हमारा कहता है कि इंसान when at 24 days, इसको इस्लाम में वर्ड दिया गया है अल्लाह का, which is leech. मतलब है कि लीच जो है ना वो it clings on. It clings on to the womb, it clings on to the mother, it clings on to eventually worldly things. Jabke it has to cling on to Allah Ta'ala. It has to cling on to the main purpose of your being. Now if that is not there, and you're literally clinging on to everything else, which includes money, which includes power, which includes
all these other desires and all these other things that really appeal us and inspire us. तो उसमें फिर वही बात है कि सोचने समझने की सलाहियत है नहीं ना. Because your soul is missing. Yeah, because we're all just following something. That something can be anything. कोई किसी की गाड़ी अच्छी है, we're all very impressed. If somebody is carrying a certain bag, we're all very impressed. When I say we, I'm talking about girls, I'm talking about boys. So वही चीज़ है कि अब आप देखें जो एक मुहावरा है कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं. It has become that. ये दौर यही है. It's okay कि अगर मेरे टाइप का क्राउड नहीं है. It's okay कि अगर मुझे अकेले जाके किसी कैफ़े में बैठना पड़े. And instead of being a part of that crowd जो मेरे साथ बिल्कुल किसी लिहाज से resonate नहीं करता, I would rather sit down in self-contemplation और मैं 1 घंटा अकेले बैठ के सोचूं कि यार मैंने अपने आप को कहाँ ठीक करना. This is so true. हम में से कोई जाके नहीं बैठेगा अकेले कैफ़े में. Why? Because हमें डर लगेगा कि लोग हमें जज करेंगे कि यार ये तो this person is in solitude, no friends, oh my god. So I think that is one thing. And then of course again people are very very scared of being lonely. लोगों को अकेले नहीं रहना, लोगों को अकेले रहने से डर लगता है. एंड अगर आप देखें तो अगेन इफ़ यू गो बैक टू योर रूट्स, इंसान को ये कहा गया है कि अकेले बैठो, बिल्कुल अपने आप को सोचो, अपने खुदा से रब्ता करो. वी डोंट डू दैट. एंड व्हेन आई से, एटलीस्ट मेरा नज़रिया ये होता है जब मैं कहती हूँ ना कि खुदा से रब्ता करो, आई थिंक आई एम जस्ट समबडी हु लाइक्स टू मेंटेन दैट बैलेंस. मैं ये नहीं कहती नमाज़ें पढ़ो 5 वक्त की, मुझे नहीं लगता अल्लाह ताला इतने वो हैं स्ट्रिक्ट हमारे ऊपर. आई जस्ट फील कि एक वो कनेक्शन आप डेवलप करो अल्लाह ताला से. बिकॉज अगर कभी लोग नहीं भी हों तो आपको वो एक एम्प्टीनेस ना लगे अपने इर्द गिर्द. यू जस्ट नो दैट इट्स ओके. You have someone. You have someone behind your back जो कि आपकी. Yeah, and see, this is why a lot of people I've noticed, they are constantly falling back into all of these other things like drugs and following the crowd and all of that because outlet नहीं कोई मिल रहा. वो isolation period में गए, फौरन outlet चाहिए कोई. So a drug helps. It'll keep your head numb. Yes. ठीक है, fine. आपको अपने emotions को face नहीं करना. So great. It's working for me. I'd rather go sit with 20 people who are not like-minded because ठीक है, I'll look cool. Again, I don't have to face my emotions. मुझे अकेले बैठ के ये तो नहीं सोचना कि यार मतलब am I looking like a loser? It's okay. Loser कौन है? कोई भी नहीं है. Just because you're being judged by others, you're considering yourself as that. So I think it's just that कि जो वही सेल्फ रिफ्लेक्ट करने वाली बात है, अपने इमोशंस के साथ बैठने वाली बात है. आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दैट. But then how do you think it will, it's things are not solving, right? Yeah. We are going through a time, and in future I'm sure it's a very destructive time. Future कोई अच्छा है नहीं if we see religious aspects of generations also. What do you think it's what is next? You know, how और कितना ही खराब होंगे हम अब. See, I don't think I'm somebody to say that. मुझे लगता है मैं खुद भी बड़ी गुनाहगार हूँ. हाँ, of course, but you know हम. But of course, you know, the fact that I get to deal with so many people and so many clients, I think मुझे ये लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं of somehow going back to the basics, who are still trying कि यार ये जो चीज़ें हो रही हैं ना ये हमें नहीं समझ आ रही हैं. But of course the majority is in that, right? So आने वाले वक्त में बस अल्लाह कुछ बेहतर करे तो करे. मुझे पर्सनली नहीं लगता कि शायद the times are going to be very good. I don't think so. In terms of morals, in terms of ethics, in terms of some of the most basic things. आपके अखलाकियात हो गए, आपका ज़र्फ़ हो गया, आपके overall consideration हो गई towards other people. Just the basics, I feel they're already lacking. So आगे तो मुझे लगता है शायद होए नहीं.
क्या मेजॉरिटी केस क्या आता है आपके पास? लाइक अगर आपके पास 300 लोग आ रहे हैं तो आई एम श्योर उनमें से 150 केसेस एक ही प्रॉब्लम को लेके होंगे. Majority comes with marital issues. What kind of marital issues? Extramarital affairs? Extramarital affairs, शादियाँ अच्छी नहीं चल रही हैं, not sure whether they want to stick around or no, lack of communication, lack of being happy around their partners, a lot of that. Why do you think people cheat? So इसके भी काफ़ी reasons होते हैं. Again, individuals, they're very traumatized. And a lot of them haven't had a chance to go to therapy. So वो जो अपने बचपन के ट्रॉमास लेके फिर रहे होते हैं वो फिर अपने पार्टनर्स पे निकाल रहे होते हैं, जो मैंने ज़्यादातर केसेस में देखा है. अगर वो चीज़ नहीं होती है, इवेंचुअली जो फैमिली के इंटरफेरेंसेस होते हैं बिटवीन दैट कपल, that again causes a lot of problems. And not that I'm supporting or not supporting family कब कहीं पे बीच में बोलना या वो, बट एथिकली भी देखा जाए तो कपल्स के बीच में जितने कम लोग बोलें उतना बेहतर ही होता है. बट आई फील अगेन बाउंड्रीज नहीं है हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में. सो हर किसी को लगता है कि हर एक के मामले में आप टांग अड़ाएं. सो आई थिंक उसकी वजह से मैंने देखा है बहुत इश्यूज होते हैं. सास ने कुछ कह दिया, लड़की के पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, उस पर बहुत इश्यूज लेके लोग बैठे हुए होते हैं. फाइनेंसिस की बेसिस पे बहुत लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं. इफ़ फाइनेंशियल्स आर नॉट गोइंग टू वेल, इफ़ दे आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, तो फिर प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं. बिकॉज नेचुरली पीपल वांट टू हैव स्टेबिलिटी इन देयर लाइव्स, एंड इफ़ दैट इज़ नॉट देयर फाइनेंशियली, तो फिर उसमें भी बहुत डाउनर्स आना शुरू हो जाते हैं. सो मेनली आई थिंक चीट करने का हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक स्पेसिफिक रीज़न होता है. आई वुड से कलेक्टिव शायद रीजंस बनते हैं लोगों की लाइफ में, जो कि इवेंचुअली दैट लीड्स टू चीटिंग. हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने स्पेसिफिकली चीट किया क्योंकि उसका मूड था तो चीट कर लिया. इवन विद मेन, मोस्टली मैंने देखा है ज़्यादातर मेन दे आर चीटिंग. एंड अगर कोई रीज़न ऐसा नहीं है ना कि मैं कहूँ कि कोई और फैक्टर नहीं है, सो इट्स डेफिनेटली जो एक फैक्टर ज़रूर सामने आता है वो है उनका ट्रॉमा बचपन का. What's the basic trauma all these people have? A lot of times, a lot of people go back to getting assaulted in their childhood. वो चीज़ बहुत होती है. Not being understood by their parents. Having a lot of whats and ifs, in life, कि मुझे ये करना था but parents ने नहीं allow किया. This is a certain way I wanted to feel connected to my parent, but my parent was emotionally unavailable. वो बहुत होता है. या फिर ये कि किसी ने अगर अपने पेरेंट्स के आपस में मैरिज देखी हो कि इट वाज वेरी अब्यूसिव, इट वाजंट डूइंग टू वेल, जिसकी वजह से या मदर्स ने अपना इमोशनल जो टर्मोइल होता है वो बच्चों पे निकाला हुआ होता है, या फादर्स ने अपने एंगर इश्यूज बच्चों पे निकाले हुए होते हैं. सो मेनली ऑल ऑफ दैट. या बीइंग बुलीड एट स्कूल, कुछ लोगों के ये भी बहुत होता है, दे वर बुलीड, इट्स सराउंडिंग दैट इज़ वेल. या कभी कभी ये होता है कि कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था जो धोखा दे के चली गई या चला गया, सो उसका बहुत एक गुस्सा या ट्रॉमा होता है जो कि इवेंचुअली अपने पार्टनर्स पे निकल रहा होता है. And then for that reason they also cheat on their partner. Yeah. Because once they feel betrayed and they think this is what everybody's about, they just become that. It's not a resolved trauma. Yes. So बस फिर वो यही होता है, कहते हैं फिर हम भी यही बन जाते हैं, because अब तो हर कोई ऐसा ही है ना. So why not do that? So yeah. करियर को लेके भी आपके पास काफ़ी आई थिंक फाइंडिंग्स काफ़ी ज़्यादा आती होंगी. क्वेरीज आल्सो. मोस्टली पीपल वांट टू नो कि जो जॉब चल रही है उसमें ग्रोथ कब आएगी, कैसे आएगी. पॉलिटिक्स एट वर्क देड लाइक टू नो अबाउट. जॉबलेस हो गए हैं तो दे वांट टू नो कि जॉब का क्या होगा,
whether the break that they've got because of being jobless, hopefully it's not permanent for them. वो उसके around बहुत होता है. Some people, they want to go abroad. They want to know what country is going to be good for them, whether going abroad is going to work for them or no, whether getting married versus making career. That's one of the basic questions. Yeah. तो ये बहुत होता है कि अब भी रुक जाएं, शादी करें ना करें, बिकॉज फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि शादी कर लो. सो ये आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों को फ़िक्र होती है कि शादी कैन वेट, बट करियर का एक सर्टन टाइम है कि अगर अभी हमने मेहनत कर ली, अभी टाइम लगा दिया, सो आगे शादी तो हो ही जाएगी इवेंचुअली. सो करियर को लेके इट्स मेनली दैट. आई थिंक जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं, those are people who think about others बहुत ज़्यादा. सब लोगों के बारे में सोच रहे हैं, कोई अपने बारे में नहीं सोच रहा सबसे ज़्यादा. कोई फैमिली के बारे में सोच रहा है, तो कोई करियर के बारे में सोच रहा है. वो अपने बारे में ही सोचना है, बट देन स्टिल इंडिविजुअली कोई अपनी खुशी या हैप्पीनेस के बारे में इतना ज़्यादा सोच नहीं रहा. दिस इज़ वॉट आई हैव रियलाइज्ड, क्योंकि अगर कोई चीट भी कर रहा है तो उसको भी मसला है, और दे आर फीलिंग गिल्टी अबाउट इट ऑल्सो. Actually, people who are cheating, they're very much thinking about themselves, of course. because that is something which is making them happy, They are and then they selfish. don't give a shit about किसको क्या तकलीफ हो But रही then है they are बच्चों को या coming to you asking कि क्या हमने सही किया, गलत किया. And to be honest, it's sad, but 80% people, I would say, out of the 100, everybody's cheating on everybody. That's how it is nowadays. and mostly are men, I'm sure. Mostly yes. So हम ये नहीं कह सकते कि कोई अपने बारे में नहीं सोच रहा है, बट yes, what we can say is कि फैक्टर्स जो बनते हैं किसी को अपने डिसीजंस लेने में, majority of the factors are based on ये बाकी की चीज़ें कि अच्छा फैमिली क्या कहेगी, या फिर ये कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो क्या वो मेरे फलाने इस पर्टिकुलर रिश्ते के लिए या whatever family they have उसके लिए कैसा रहेगा. So it's never solely about an individual. It's always about कि अच्छा और भी जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके लिए या उनकी वजह से एक सर्टेन डिसीजन लिया जाए तो लिया जाए या नहीं. But yes, I think people who are selfish, they just like to think about themselves. उनको कोई नहीं दिख रहा होता. Why do you think औरतें या लेडीज़ लोग ज़्यादा चीट नहीं करते, बट मैन लोग ज़्यादा चीट करते हैं? नॉट इन मैरिज ओनली, बट जनरल रिलेशनशिप. जनरली मुझे लगता है औरतों का मॉरल कंपस ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड इसमें वी कांट रियली ब्लेम अगेन, बिकॉज जो हम एक सुनते आते थे ना कि कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने मर्दों को एक सर्टन मैनर में बनाया है, वो चीज़ मैं देख रही होती हूँ. लिटरली व्हेन आई एम टॉकिंग टू माई क्लाइंट्स एंड व्हेन आई एम लिसनिंग टू मेन टॉकिंग, आई एम लाइक okay, maybe they were born this way. And also one factor which is very much there, a woman, she's capable of giving birth, and because she has that motherly instinct in her, she's very much careful with what she's going to do ahead in life. Because agar let's say if somebody who's married, she doesn't have kids, तो औरत के कहीं ना कहीं दिमाग में ये होगा कि कल को मेरे बच्चे होंगे, how is it gonna reflect on my family life. If she already has kids, तो औरत ये ज़रूर सोचती है कि मेरे अभी बच्चे हैं तो इनकी वेलबींग के लिए क्या ये चीज़ ठीक है या नहीं है. मर्द ये नहीं सोचता. मर्द कहता है बच्चे साइड पे, बीवी साइड पे, मैं सबसे आगे. I want this right now. So I think that's where the difference is. But then इसको फिर बैलेंस करना मुश्किल हो जाता होगा, I'm sure, मैरिजेस में. Again, right? I think मर्दों का कॉन्सेप्ट ये होता है जब तक चल रहा है काम चलाओ. एक मुझे सवाल आपसे पूछना था, बिकॉज यू कैन सी एंड यू कैन ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ स्टफ. आई एम श्योर आपके दोस्त होंगे, अपने रिलेशनशिप्स में होंगे, एंड कुछ लोग मैरिड भी होंगे या उनके बच्चे भी होंगे. तो व्हेन यू सी द पर्सन कमिंग इनटू द फ्रेम, आपको उनकी एनर्जी जो है वो डिटेक्ट हो जाती होगी थ्रू योर सेंसेस, राइट?
आपको Even if they're not there, I know what's up. आपको बर्डन नहीं फील होता बिकॉज यू नो समथिंग अबाउट द पर्सन, या तो वो सीक्रेट है बहुत ज़्यादा, उसने किसी को बताया नहीं है, बट यू नो कि ये कोई चीज़ गलत कर रहा है या कोई चीज़ अच्छी भी है, एंड यू कांट टेल एनीवन. So I think यहाँ पे then I have to bring out my human side, the human that I am. You know, my parents दोनों ही इस तरह के थे कि बहुत इस मामले में फोकस था कि माइंड योर ओन बिजनेस, किसी के मामले में नहीं पड़ो, अपने काम से काम रखो, किसी के मामले में गैर ज़रूरी बोलना नहीं है, जितना चुप रह सकती हो उतना चुप रहो. सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो तरबियत का बहुत हिस्सा रही मेरे. इनफैक्ट कभी मुझे याद है, अगर मैंने एज अ चाइल्ड आप कर ही देते हो कि मैंने कभी अगर ये गलती की हो कि मैंने किसी की बात कर भी दी हो घर आके, तो मुझे बड़ी डांट पड़ती थी कि आपने इधर की बात उधर क्यों की. सो वो आई थिंक इज़ देयर. तो अब वो मैंने प्रोफेशनल अपना और एक पर्सनल लाइफ जो है ना उसके बीच में एक बड़ा एक वो रखा हुआ है बैलेंस. आई हैव टू मेंटेन इट बिकॉज देन अदरवाइज आई ऑल्सो फील आई कांट jeopardize my own relationships, right? Because a lot of times people don't want to listen to what's happening. They don't want to know the truth. कुछ चीज़ें अपने टाइम पे ही आए किसी की लाइफ में तो बेहतर होता है, ना कि मैं उनको बताऊं. So it's also about me at least trying to be wise for people. कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे पता है तो मैं उतना ही बोलूं भी या बताऊं भी. आई थिंक वाइज होना यही है कि आप खामोश कितना रह सकते हैं, आप कहाँ अपना मुंह बंद रख सकते हैं. आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई हैड टू लर्न. सो इवन इफ आई नो, आई प्रिटेंड लाइक आई डोंट नो. But then how do you control it if you know something which is bad, right? Yeah. And the other person should know about this. Yeah, so if let's say somebody's telling me and I'd be like, wow, really? Oh my God, I didn't know that. So, But आपको already पता होता है पहले से. yeah. But I just gotta pretend. That's very interesting actually because लोगों की बहुत layers होती हैं. You know, people are different when they are alone. People are different when they are with other people around. And you know them personally कि वो घर जाके क्या कर रहे होते हैं या कुछ भी है उनकी लाइफ में. And then you are also friends with them. Yeah. See, again, बात वो आती है कि I can't judge people. I just can't. I'm not allowed to. मैं खुद भी इंसान हूँ, मेरे अंदर खुद भी दबा के फ्लॉज हैं. It's not like I'm a perfect human being. But किसी को पता नहीं है ना उन फ्लॉज के So बारे में. मेरी अगर चीज़ों पे अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है आज तक, और अगर मुझे अल्लाह ने इतनी सलाहियतें दे दी हैं, तो आई थिंक मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी लोगों की बातों पे, उनकी चीज़ों पे पर्दा रखूँ. बिकॉज अल्लाह ने रखा हुआ है तो फिर who am I? And again, if somebody, again boundaries की बात आती है ना, you're supposed to respect other people's boundaries. If somebody doesn't want to talk about their life, even if they're my closest friends, I just gotta shut up because it's not my place to say it to them. एक वो भी तो देखना ना कि एज अ फ्रेंड मेरी क्या जगह बनती है, या एज वट एवर कैपेसिटी में मैं उनको जानती हूँ उसमें मेरा क्या स्पेस है, वहाँ पे मेरा क्या रोल बनता है. वो भी मुझे एक अवेयरनेस रखनी ज़रूरी होती है. सो यस, ये चीज़ मैं कह सकती हूँ दैट माई माइंड इज़ वेरी ओवर स्टिम्युलेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट जस्ट गोटा डील विद इट. What other secrets do you know about some celebrity or a politician? Because मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था उसमें, और मैंने इतना ही देखा उतना ही बंद कर दिया मैंने, जहाँ पे ही वाज लाइक वो किसी पॉलिटिशियन ने आपको बुलाया है कि नहीं कभी, you know? तो वहाँ पे मैंने बंद कर दिया बिकॉज आई वांट टू नो कि क्या हुआ था. नहीं, वो तो बेसिकली वो हमारी ये बात हुई थी कि ही वांटेड टू नो कि कभी पॉलिटिशियंस ने अप्रोच किया है इन अ सर्टेन मैनर. सो वो बात हम ये कह रहे थे कि मैं इन पर्सन सेशंस नहीं करती हूँ. बिकॉज देन अगेन एनर्जी एक्सचेंज बहुत हैवी हो जाता है. ऑल्सो बिकॉज अगेन बीइंग अ गर्ल, आई कांट meet people in a personal capacity. Doesn't fit right for me. तो वो एक आया था फ़ोन के in person session लेना, and I said, I don't do it. And they were like, just see if you can. And I said, there's no way. So अब तो खैर जो आते हैं politicians वो
तमीज़ से ही आते हैं ऑडियो पे ही आप बात करते हैं? आई ओनली डू ऑडियो कॉल्स, दैट्स इट. नाइस. जो भी आए, आई डोंट केयर. कोई क्रेजी पॉलिटिशियन, यू डोंट हैव टू नेम इट, सही है, लेकिन किसी ने कुछ ऐसी बात बोली हो जहाँ पे लाइक नहीं, आई थिंक अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ही बस इस तरह की आई थी कॉल, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई फील अभी भी जो पॉलिटिशियंस वगैरह आते हैं वेरी तमीज़दार, वेरी रीजनेबल, दे नो कि अलीज़े की बाउंड्रीज हैं सर्टन, एंड दे नो कि आई डोंट गिव अ डैम कि कौन मुझे फ़ोन कर रहा है, सो दे नो कि रियायत नहीं होनी है अदरवाइज. सो विच इज़ वाई जनरली पीपल आर वेरी तमीज़ वाले. you love your work, right? I gotta love it. You don't have any choice. I don't have a choice. That's what I say. Recently somebody asked me, so how did you find your work? I said, I didn't find it. The work found me. So I wasn't given an option. Sometimes don't you feel exhausted और आप ब्रेक लेती हैं अपने काम से? मैंने ब्रेक लेनी शुरू की थी. इनिशियली जब मैंने काम किया तो मैंने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कोई ब्रेक नहीं ली. एंड देयर वर डेज़ कि मेरी बहुत तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी, बिकॉज जब आप डायमेंशंस में बहुत ज़्यादा टैप इन कर रहे होते हैं, सो आप 3D वर्ल्ड से ना आपका डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है. तो मैं तो कोई ऐसी ट्रेंड थी नहीं, तो वो मेरा डिस्कनेक्शन शुरू हो गया था. तो उसमें फिर होता है कि आपको एंग्जाइटी होती है कभी कभी, बिकॉज आप इतने लोगों के इमोशंस पिक कर रहे हैं ना. सो वो होने लगा था. फिर आई रियलाइज़ कि अच्छा नहीं, मुझे थोड़ा काम भी अपना कम करना पड़ेगा, बिकॉज मैक्सिमम जो हमारी फील्ड के अगर कोई साइकिक्स हैं, कोई क्लेयरवॉयंट्स हैं जो रीडिंग्स करते हैं, एनर्जी वर्कर्स हैं, वो मैक्सिमम दिन के बहुत हुआ तो 3 सेशंस करते हैं मैक्सिमम. And how do you tap into different dimensions technically, or can you So explain? dimensions में टैप यूँ आप करते हो बेसिकली कि so again कुछ चीज़ें कुदरती तौर पे, राइट. I get visions. Let's say I'm just chilling over here with my friends and कोई vision आ जाएगा, कोई premonition. Final destination. There. So I can very much relate to that movie. So कोई premonition आपको आ गया. If not that, dreams में you get to know about things. If not dreams, आपको feeling एक आती है बड़ी strong. That feeling is where your intuitive knowledge is speaking. So आपको अपनी intuition को सुनना आना चाहिए. You have to know कि आप खुद क्या सोच रहे हैं और आपको what is your sixth sense telling you. So I think eventually वो आपको आ जाता है, वो energy pick करना. And that's how you get to know. आप अभी इस रूम में आई तो आपको क्या एनर्जी फील हुई? मुझसे और बिलाल भाई से, and let's experiment. I think with him, I thought he's a very calm and composed personality. मुझे लगा मुझे लगा कि बिलाल भाई जैसे बहुत like he likes to take his time and think through things. जल्दबाजी के काम आप नहीं करते हैं. आप स्पेशली अगर कोई बड़े डिसीजंस हों, कुछ हों, तो आप उस पर सोचेंगे और फिर आप उस पर कोई डिसीजन लेंगे. हाँ, ये ज़रूर हो सकता है आपके मामले में कि कन्फ्यूजन हो. डू यू हैव अ फीमेल फिगर इन योर लाइफ who is very close to you? Yes, he does. Yes. हाँ, और आप सब डिस्कस अगर कोई इस तरह हो तो आप करते हैं. या सो आई थिंक जहाँ पे कन्फ्यूजन, एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होता है, आई थिंक दैट इज़ वेयर यू लाइक टू गो. एंड या सो दैट्स व्हाट आई पिक्ड अप फ्रॉम हिम. मुझे भी बता दे, मैं एडिट करूँगा. सही बताया मैंने? अच्छा बताया. एक्चुअली इट्स वेरी ट्रू. So in your case, I feel you have 2 sides to yourself. ठीक है, एक fun element है जो कि उन लोगों के around होता है जिनके around you're comfortable with. And you usually get comfortable with people quickly. ऐसा नहीं है कि एक होता है ना थोड़ा introvert type का इंसान हो, you're not that. But there's another side to you which opens up to a certain people only. And not with, even though आप कह रहे हो कि सारे मेरे दोस्त हैं, बट उनमें भी सारे आपके दोस्त नहीं होते हैं. Am I making sense? You are actually. Wrong or right? Right. Okay. So you can correct me if I'm wrong. I can always be wrong. I will. I can always be wrong.
Also, I feel, there's also a side of you again which is very chill, but at the same, are you very protective towards somebody? I don't know if myself counts. मैं अपने आप को लेके काफी प्रोटेक्टिव हूँ. Protective In what sense? like when I look into your mind, ऐसा लगता है there's a side of you which is very either protective towards your loved ones or generally very protective towards your certain relationships. You're very protective. हाँ, I am. Like you think about them. हाँ, I do. You're you do get concerned about what's happening and what's up and around that. I do. How do you know so much? How do you know so much? That's all I picked up इतनी देर में. ये तो बताएं कि मेरी लाइफ में कोई फीमेल है या नहीं. उनका तो बता दिया आपने. हम वो बाद में करें read. सही है. That's quite exciting because you were right 100% for him also and for me also. Okay. So I had to test it somehow, and you're good. मेरे हाथ कांप रहे थे थोड़े से बीच में कुछ ऐसा अच्छा ना मैं भी डर रही थी मैंने कहा शायद मैं गलत हो जाऊं. तो मैंने सोचा कि शायद मैं साइक कर दूं इनको कहीं लेकिन अच्छा रीडिंग में एक चीज़ मैं बताती हूँ एक थोड़े से जैसे मिसकंसेप्शन है ना अभी जैसे आई आस्क्ड यू कि डू यू हैव एन ओल्डर सिबलिंग सो कभी कभी लोगों को ये लगता है कि अब मेरे सवाल का मतलब ही ये है कि मुझे लगा है कि आपका कोई बड़ा हुआ है जबकि द वर्ड दैट आई एम ओनली फीलिंग राइट नाउ इज़ ओल्डर और वो ओल्डर मुझे बस जानना है कि अब वो आप भी ओल्डर हो सकते हैं या आपके भी बड़ा कोई हो सकता है सो वंस यू गिव मी द आंसर फॉर दैट इज़ व्हेन आई विल पिक अप फर्दर ऑन योर एनर्जी अराउंड इट इस तरह होता है कभी कभी नॉर्मली व्हेन यू गो समवेयर आपको कभी कहीं से बहुत ही बुरी एनर्जी आ रही हो राइट किसी इंसान से या किसी जगहों का भी आपको होता होगा आई एम श्योर राइट देन व्हाट डू यू डू और आपके साथ फाइनल डेस्टिनेशन होता है कि अभी 10 मिनट बाद यहाँ पे कुछ होने वाला है हाँ ये तो बहुत होता है सो आई शुड बी आउट अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव टेक्स्टेड माय फ्रेंड्स सेइंग कि गाड़ी ख्याल से चलाना एक्सीडेंट हो सकता है एंड 10 मिनट्स लेटर दे वुड मैसेज मी कि यार एक्सीडेंट हो गया सो ये इस तरह की चीज़ें तो बहुत होती हैं या आई वुड से कि यू नो बी केयरफुल तुम्हारी जॉब पे कोई मसला होने वाला है एंड 3 days लेटर दे वुड से कि यार जॉब पे मसला हो गया यू नो कोई बॉस से लड़ाई हो गई या कोई किसी और कॉलीग के साथ इशू हो गया सो ये वाली चीज़ें तो बहुत होती हैं नाइस आई एम स्पीचलेस नाउ उसके बाद आई वांटेड टू आस्क कैन यू टेल मी सम ऑफ द प्रेडिक्शंस फॉर 2026 फॉर 26 सो मैंने वर्ल्ड कप कौन जीतेगा मुझे पता ही नहीं कौन खेल रहा है हाँ क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीतेगा अभी है बस फेब में वो बाद में बताऊंगी हाँ, सोच के साइक हाँ वो बाद में सोच के बताऊंगी सही बट आई थिंक दिस ईयर मैंने कुछ मेंशन की थी अपने इंस्टाग्राम पे भी एक देयर विल बी अ वॉर लाइक सिचुएशन बिटवीन 3 मेजर कंट्रीज बट वो मुझे लगता है वो डिफ्यूज़ हो जाएगी सिचुएशन वो बहुत ज़्यादा एस्केलेट नहीं करेगी एक तो दैट दूसरा मुझे लगता है कि जो आपके ओशंस हैं सीज़ हैं इनके ऊपर रिसर्च स्टार्ट होगी नासा इज़ डेफिनेटली गोइंग टू डू समथिंग अराउंड दैट बाय द वे जस्ट इन केस यू डोंट नो मैं बड़ा प्राउडली कहती हूँ कि पहले मैं बताती हूँ बाद में नासा बताता है बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स यू नो आई से समथिंग इन अ कपल ऑफ डेज लेटर जो मैंने वर्ड्स यूज़ किए होते हैं टाइटल्स एग्जैक्टली नासा ने वही यूज़ किए होते हैं मैंने वो दिखाए मैं अपने इंस्टाग्राम पे सो उस पर आई कैन फ्लेक्स बट या फॉर दिस ईयर आई थिंक वर्ल्ड में ओवरऑल आई थिंक रिकॉर्ड टूटेगा इन टर्म्स ऑफ द हीट that people will have to bear. Yes. I think that is going to be there. Also, मुझे लगा था कि कोई politician will be murdered, probably through by being shot. That is there. अभी जो एक मैंने दी थी 19th को मैंने
रैंडम अपनी स्टोरीज पे लिखा था इटली, एंड आई रोट I don't know what's gonna happen. On the 20th, Italy में storm आया and there was flooding and all of that. And then everybody was sending me clips कि ये हो गया within a day. So अभी तक इतना ही feel हुआ है मुझे. So बहुत बार ये होता है कि as the days are passing by, randomly बैठे बैठे बस चीज़ें feel होती हैं और मैं लिखती हूँ, और फिर वो 3 महीने 4 महीने कभी कभी अगले दिन ही हो रही होती हैं. तो 2026 में दुनिया ख़त्म नहीं हो रही? No, definitely not. सही है. चलो. खैर. Also, I wanted to ask, पाकिस्तान के context में what will happen politically? Do you know anything about it? Or can you sense something? आप जा रहे हैं मेरी दुकान बंद हो जाए? No, generally, because it's the main concern सबको लेके ही, because हालात तो बुरे हैं ही, which we all know, और कुछ और अच्छा भी नहीं होगा. I just want to know कि कितना बुरा और होगा. I just feel अच्छा कुछ नहीं होगा, especially आपकी जो आम आवाम है, उसके लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा. Because unfortunately too much politicians जो है ना वो they're just too much about what they should be doing in order to get that certain kind of power. इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी. Okay. Off camera बोलेंगे. सही है. So what do you think, what is law of attraction? यार अच्छा, साइंटिफिकली तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो उसको एक्सप्लेन किया गया इन अ लॉट ऑफ वेज, राइट, बट मुझे ये लगता है बिकॉज आई एम समबडी गिफ्टेड थ्रू द हायर पावर ऑफ कोर्स, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें एक स्पिरिचुअल एंगल से देखनी है होती हैं. तो आई ऑलवेज से दिस कि जैसे खुदा ने भी कहा है ना कि जैसा मेरे बारे में गुमान करोगे वैसा पाओगे मुझे. एंड आपने सुना होगा कि बचपन से हमें बड़े बुज़ुर्ग कहते आ रहे हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, मुंह से कुछ बुरा नहीं निकालना, कबूलियत का वक्त होता है, अजान के टाइम पे कुछ नहीं कहना. आई थिंक दैट इज़ जस्ट योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आप जो जिस तरह की एनर्जी आप कैरी करेंगे, इफ़ यू बिलीव कि मेरे साथ अच्छा होगा, तो अगेन एक तो आप यू आर कैरिंग अ सर्टन पॉजिटिव एनर्जी जो कि ऑब्वियसली विच यू आर सेंडिंग आउट टू द यूनिवर्स. एंड एट द सेम टाइम बात वही आ जाती है कि आप खुदा से अच्छा गुमान रख रहे हैं, कि आप कह रहे हैं कि अगेन तवक्कल कि मेरे साथ अच्छा होगा लाइफ में, तो फिर खुदा भी तो कहेगा ना कि मेरा बंदा मेरे से ये उम्मीद रख रहा है, तो लेट मी जस्ट डू इट फॉर हिम, मैं इसको गलत ना प्रूव होने दूँ. आई थिंक इट्स दैट, इट्स वेरी मच दैट. दूसरा ये है कि जिसको हम कहते हैं ना एक रिपल इफेक्ट. अगेन मैं जैसे अपनी एग्जांपल देती हूँ, आई थिंक इफ़ माई मदर वॉचेज़ दिस, आई एम दी ओनली चाइल्ड, और घर में बेइज्जती भी बड़ी होती थी कभी कभी. सो मतलब अम्मा से बेइज्जतियाँ हो रही होती थी और अब्बा पैम्पर कर रहे होते थे. और वो नखरा बहुत था कि भाई मैं तो इकलौती बच्ची, तो मैं कभी अम्मा कहना किचन का काम करो तो मैं कहती थी एक्सक्यूज मी प्लीज, आई एम अ सेलिब्रिटी, आई एम अ पब्लिक फिगर. अभी 2 घंटे में गैस जाने वाली. वो बोल के आई थिंक वो मैंने इतना बिलीव किया कि इवेंचुअली आई बिकेम दैट. सो व्हाट आई लर्नड फ्रॉम इट इज़ कि यू जस्ट हैव टू बिलीव इन व्हाट यू आर सेइंग. अगर आपका वो फेथ नहीं है, you can't attract anything. So you've got to have that faith कि मैं जो बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ या जो सोच है मेरी या जो मेरी समझ है, it's there. उसमें there shouldn't be any doubt. क्योंकि मैं तो घर में पूरा बिलीव करती थी डांटों के बावजूद भी मैं सेलिब्रिटी हूँ. So I think it's just about your faith. It's just that. थोड़े से सवाल मुझे अब आ रहे हैं. क्या मेरी वाली अलग है? ये नॉर्मल आवाम के सवाल क्या आपकी वाली आपके लिए अलग है या why do you think dreams are very important in our society, and what kind of dreams are there? या कितनी टाइप्स होती हैं ड्रीम्स की? अच्छा, आई थिंक ड्रीम्स की सिग्निफिकेंस बेशक बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हमारे यहाँ के लोग बहुत सर पे भी सवार करते हैं ख्वाबों को. A lot of times अगर मैंने देखा है लोगों को ख्वाब आते हैं, बहुत बार लोग आते हैं मेरे पास ख्वाब के बारे में पूछना है,
बहुत बार ये होता है कि वो बिकॉज उनकी अपनी एनर्जी बड़ी नेगेटिव चल रही होती है, परेशान है किसी वजह से, कोई मसला चल रहा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द करंट स्टेट ऑफ माइंड जिसमें वो होते हैं, उसकी वजह से दे आर जस्ट गेटिंग वेरी नेगेटिव ड्रीम्स. नींद नहीं पूरी हो रही है तो कोई इस तरह का ख्वाब आ गया या कुछ. जहाँ तक अच्छे और बुरे ख्वाब की बात है, यस, मैं हमेशा कहती हूँ जिसको हम एक नाम दे देते हैं ना कि एक सुपर ह्यूमन फैक्टर है. जैसे लॉट ऑफ पीपल they just call me you're a superhuman. I am actually not, because ये वाला जो फैक्टर है ना कि ख्वाब सच्चे हो जाना, सिक्स सेंस तेज़ होना, ये हम सब इंसानों में है. इट्स जस्ट दैट हमने उसको एक इतनी अलग चीज़ बना दिया है कि अगर कोई इंट्यूटिवली तेज़ है, किसी की इंट्यूशन तेज़ काम करती है, किसी के ख्वाब सच्चे होते हैं, तो हम ये कहते हैं ओ माय गॉड, इस इंसान के बारे में तो कुछ अलग ही है, यू नो, ये हम में से तो है ही नहीं. पॉजिटिव ख्वाब जो होते हैं, yes, a lot of times they're leading you to basically showing you in advance कि something good is going to happen in life. या आप किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान होते हैं, जैसे भी बिलाल भाई ने कहा इस्तिखारा, नॉट पर से इस्तिखारा, लेकिन जैसे अगर आप बार बार खुदा से मदद मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे आप रास्ता दिखाएं, व्हाट इज़ गुड फॉर मी. इस्तिखारा भी जो हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है कि इस्तिखारा आपने किया तो वो लॉन्गर रन में वो एक फ़ैसला आपके पास आ गया, जवाब आ गया. कभी कभी इस्तिखारा उस सर्टन टाइम के लिए भी अच्छा नहीं होता, एंड विच इज़ वाई यू गेट अ नो, एंड देन इवेंचुअली मे बी इन अ कपल ऑफ मंथ्स व्हेन यू डू दैट इस्तिखारा अगेन, इट कैन ऑलवेज बी पॉजिटिव. सो मे बी द टाइमिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू इन दैट मोमेंट, इसलिए आपका इस्तिखारा बुरा आया है. सो कुछ बुरा नज़र आने का मतलब डेफिनेटली होता है कि कोई डायरेक्शन आपको मिल रही है किसी तरह की, या आपको कोई जवाब मिल रहा है. एंड समथिंग पॉजिटिव अगेन, इट मीन्स यू आर सपोज टू बी ब्लेस्ड, या आपके पास कुछ अच्छा आने वाला है. सो या ड्रीम्स की बहुत सिग्निफिकेंस होती है. Alize, thank you so much for coming. It was You're a welcome. pleasure talking to you, seriously. मजाक मस्ती हमारी काफ़ी ज़्यादा हो गई, that's why serious attitude ख़त्म हो गया, but it's very good to have you here. एंड आज हमने कुछ नया ही सीखा है, बिकॉज इस पॉडकास्ट पे जो है वो बहुत सारे लोग आते हैं, मेनली एक्टर्स आते हैं या यूट्यूबर्स आ रहे हैं, बट दिस इज़ समथिंग जो कि इट्स न्यू फॉर अस ऑल्सो. एंड हमने सीखा इतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज वो चीज़ आप ही कर सकती हैं, बट हमें पता बहुत कुछ चल रहा है लोगों के बारे में. एंड मैंने बहुत सारे स्टूपिड सवाल पूछे, उसके लिए आई एम रियली सॉरी. Not at all, not at all. एंड इंशाल्लाह we'll meet again. Inshallah. Thank you so much. Before going, just give me your feedback. How can I improve the experience of this podcast? First of all, thank you so much for having me. I think I thoroughly enjoyed, because the overall vibe was really positive. It was very good. In all honesty, your questions were really fun. मज़े के questions थे, not typical. So I have to give that to you. But ये है कि I think I don't know, मुझे नहीं लगता मैं आपको इस पोजीशन में हूँ कि मैं बताऊँ कि आप कुछ अच्छा करें. I think you're already doing a great job. But I do feel कि the more you're going to be yourself, I think that is something which is going to bring out the comfort in your guest as well. Thank you so much, Alize. And yeah.